There are moments in life which you remember. I was there when this happened. For my generation, the 26/11 attacks was certainly one of them. I was fresh out of college. My early 20s, when we got the news that something had happened in Bombay, then it wasn't something. And I remember the realization of that this is serious, that this is bigger, this is not just a terror attack, it's a siege, is when the top officers in the Mumbai ATS started dying. We got reports that they are dead. And then the siege went on for 3 days. I remember where I was, what I was doing when the news first came, and how we watched it for 3 days. I also remember that subsequently I became a journalist, covering for a bit foreign affairs. And I remember dossier after dossier, after dossier, after dossier, after dossier, after dossier. That's all I remember of us seeking accountability for a siege in a major city in this country and the lives lost. It brings me to tears, because we talk about the top officers. But I want you to imagine this. There is a car heading towards a checkpost. There are terrorists very well armed with AKs and grenades and whatnot, loose. They've stolen a car. They're approaching a checkpost. You're a constable at the checkpost. Your general duty is to check the boot of the car, to check license, to check RC. That's your general duty. Okay. Now you know the terrorist is coming. The car stops at the checkpost. They put their windshield cleaner on, okay, so that you can't see inside the car, and they try to reverse. They try to get out. Then they come out, okay, and there's a terrorist. You can shoot him, but you want to catch him alive. So a constable grabs the barrel of his gun as the gun is pointed to his stomach, and the guy is shooting into his stomach. The constable's name was Tukaram Omble. Okay, so this guy is shooting the gun. He's holding the barrel, okay, as bullets are being pumped into his stomach, so that Ajmal Kasab, as we later knew what the name was, is caught alive by his compatriots. And what we did was dossier after dossier. Today is the 15th anniversary, and you'd think you'd never forget. But I was watching a video very recently of the 9/11 attacks and asking young Americans about the 9/11 attacks. The 9/11 was 22 years ago. So there's a generation of early 20s people, which is what I was in 2008, who were born after 9/11, and they can't even remember who did the attacks. They don't really know who Al-Qaeda is. So people can forget, which is why remembering is important. Those who forget are doomed to repeat their mistakes. The Prime Minister has spoken about this not once but twice. Let's listen in. 26/11 को देश बहुत बड़ा आतंकी हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में हमने अनेकों निर्दोष देशवासियों को खो दिया। 26/11 का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कमजोर और असमर्थ सरकारें देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपने 2014 में कांग्रेस की कमजोर सरकार को हटाया, बीजेपी की मजबूत सरकार बनाई, जिसके कारण आज देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, चुन चुन करके सफाया हो रहा है। Okay, so now let's remember. Joining us on the broadcast is Devika Rotwan, Ujjwal Nikam, who was the 26/11 Special Prosecutor, as well as Commando Sunil Jodha,
who is a Gallantry Award winner, and he survived the 26/11 attacks. Believe it or not, and I'll introduce him very shortly, he still has a bullet inside him which could not be removed after he was shot during that operation. Devika ji, thank you very much. For people watching the broadcast, let me remind them. So Devika ji was 9 years old, if I'm not mistaken. 9 साल की उम्र थी आपकी. आप CST स्टेशन पे थे मुंबई में. और हम सब ने फ़ोटो देखी हैं, पूरे देश ने, विश्व ने फ़ोटो देखी हैं. वो एक यंग लड़का था, ब्लू जैकेट टाइप था, AK-47 हाथ में, CST में घूम रहा है. क्या हुआ? आप प्लीज़ हमें बताइए, आप कहाँ थी, किसके साथ थी CST स्टेशन पे उस दिन? 26/11/2008 की रात, ठीक 15 साल पहले, आज ही के दिन मैं, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे. बैंड्रा से हम CST गए थे. 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है. पापा बोले तू टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे. जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब स्पॉट हुआ और गोली फायरिंग होने लगती है. लोग भागने लगते, किसी के हाथ से तो किसी के पैर, तो किसी के सर से खून निकल रहा है. मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है. तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी. मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और ये कौन है और हम लोगों को क्यों मार रहा है. एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है, मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ. उसके बाद मुझे JJ हॉस्पिटल लेके गए. JJ हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही. मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाली गई. ये कितना समय था जब आपने बोला कि आपके ब्रदर वो बाथरूम तक गए? कितना समय था? कितनी फायरिंग अपने सामने देखी आपने? मैंने करीबन लाशों गिरते हुए देखी. मुझे वो समय याद नहीं है कि वो कितना समय था. काफ़ी लाशों को मैंने गिरते हुए देखा है, खून निकलते हुए देखा है, किसी के सर पे तो किसी के हाथ तो किसी के पैरों से. और एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है. तो ये कहाँ पर था? आप प्लेटफॉर्म पे थे, ट्रेन पे चढ़ गए थे, प्लेटफॉर्म पे थे, बाथरूम के पास थे, टिकट काउंटर के पास थे, कहाँ थे आप फैमिली के साथ? मैं मेन लाइन में जो वेटिंग हॉल होता है वहाँ पर हम बैठे थे, मेरे पापा, मैं और भाई तो मुझसे चले गए थे, वो दूर हो चुके थे. पापा और मैं भागने की कोशिश करते, तब कसाब की गोली आके मुझे लगी. कितना दूर था कसाब आपसे? 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठी थी मैं. कसाब अंदाज मुझसे 20 फुट दूर था. तो 15-20 फुट दूर था आपसे. आप उनको देख पाई, पहचान पाई? कसाब को मैंने देखा था, फिर जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई की थी. तो फिर आप जब आप JJ हॉस्पिटल पहुंचे, आपकी सोच क्या थी? आई एम श्योर आपको टेंशन हो रही होगी कि पापा का क्या हुआ, भाई का क्या हुआ. फैमिली आपके साथ जुड़ पाई थी, क्या हुआ उसके बाद? मैं अकेले नहीं पहुंची थी, मेरे साथ मेरे पापा थे हॉस्पिटल में, मेरे भाई मुझे हॉस्पिटल में मिल गए थे. सबसे पहले मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए थे. सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे थे तो किसी को नहीं कर रहे थे. तो डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, तो वो देख के मैं डर गई, घबरा गई, इसलिए मेरा वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे JJ हॉस्पिटल शिफ्ट किए. बट इन सभी दौरान पे मेरे पापा मेरे साथ थे और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में ही भाई मुझे मिले. वो मुझसे काफ़ी टाइम तक बिछड़ चुके थे. उसके बाद आपको होश था जब अगले 3 दिन ये चल रहा था? 3 दिन में होश था, बट मेरी ऑपरेशन, मुझे 26 नवंबर को गोली लगी, तो 27 नवंबर को मेरे पैर से बाहर गोली निकाला गया. तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी. ना ही मुझे पूरी तरीके से होश नहीं था, बस इतना पता था कि हमला अभी भी कहीं चल रहा है. न्यूज़ चैनल से मुझे इतना ही पता चल रहा था. देविका जी, अब नाउ यू आर 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 15 साल हो गए, 24-25 साल की हो गई आप. अब आपने क्या, आपने पढ़ाई क्या करी, अब आपने करियर कहाँ बनाया है आपने? मैं TY BA की स्टूडेंट हूँ. मेरा 3rd ईयर चल रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरी अभी पढ़ाई चालू है. मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऑफिसर बनूँ और टेररिज्म को ख़त्म करूँ. तो उसके बाद जब आप स्कूल गई और फिर कॉलेज गई, और अब आप नाउ कॉलेज ख़त्म कर रही हैं, फिर you want to study further, maybe join uniform, तो आपको क्या लगा? हमने 15 साल में अभी भी इनके जो मास्टरमाइंड हैं, हाफिज सईद और ऑल, अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं. कैसा लगता है आपको?
मुझे ऐसा लगता है कि सर इंसाफ मुझे मिला है बट पूरी तरीके से नहीं मिला है, 50% मिला है, 50% नहीं मिला है, क्योंकि कसाब को फांसी दे दिया, उससे खुशी तो है, जो मेन मास्टरमाइंड बैठा है ना जाने वो और कसाबों को जैसे बना रहा होगा, वहाँ आतंकवाद जो पाल रहा है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लगेगा कि इंसाफ हुआ नहीं है, तब तक ऐसे ही लगता है कि सर जख्म हरे के हरे ही है मेरे, आज भी वो भरे नहीं है। आज भी मुझे 26/11 का वो दर्द वैसा ही होता है, वो पल, वो सेकंड, हर टाइम मुझे वो याद आता है। देविका जी, उस टाइम पे आपको लोगों को बचाने के लिए, स्पेशली ताज में जहाँ पर सबसे लंबा चला था, इतने कमांडो आए, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई, तो हीरो तो थे, आप भी हो और भी थे जो आए लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या आपको फ्रस्ट्रेशन हुई कि जो अभी कहते हैं कि हम उनको घर में घुसकर उनकी जवाबदेही नहीं कर पाए? फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है सर कि इतना बड़ा हमला हो जाता है, इस हमले में आम लोग भी और ऑफिसर भी काफ़ी शहीद हुए, तो इसमें सबसे हीरो मेन देखा जाए तो वो ऑफिसर है। और तुकाराम मुमले सर, अगर तुकाराम मुमले सर ने कसाब को नहीं पकड़ा होता तो आज कसाब पता नहीं क्या कितने लोगों को और मार दिया होता तब, तो वो मेन सबसे बड़ा रोल होता है उनका। मेरी मान्य ऐसी है कि ये आतंकवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और मुझे उन पे पूरा विश्वास है। ओके देविका जी, यू आर अ हीरो टू अस एज वेल, वेरी हैप्पी टू हियर कि आप पढ़ाई कर रही हैं, एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, और अपनी कहानी बताते रहिएगा, क्योंकि आपसे आपके भी भाई बहन होंगे, क्लासमेट होंगे जो भूलना शुरू कर देते हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ था, हमें भूलना नहीं चाहिए। देविका रोतवान joining us on the broadcast. Thank you very much, ma'am, for joining us. Let me hop across and bring in Commander Sunil Jodha. Commander, really appreciate your time. For people watching us, the commander took 7 bullet shots. And as I mentioned, that one of the bullets has never been removed. In fact, he was there the next day when the operation started, and he was serving under Major Unni Krishnan, who of course lost his life. Commander Jodha, thank you very much for joining us. Let me ask you straight up, what do you remember? Where were you posted when you first heard that something has gone wrong? हम मानेसर गुड़गांव हरियाणा में थे। आपको कब आपको इंडिकेशन मिला कि आपके कमांडर से या आपके कमांडिंग ऑफिसर से कि देखिए ये कि पूरा देश मुंबई अंडर अटैक है? जब ये रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं ड्यूटी पे था, और कॉम्बैट ड्रेस में मेरी ड्यूटी चल रही थी। हम मतलब कमांडो की जो बलिदान परेड होती है उसको होने में 3 दिन थे, तो हमारा एक सायरन बजा। सायरन बजते ही उसमें क्या होता है कि जितने भी कमांडोज कहीं भी होते हैं, अपने लाइन में सो रहे होते हैं, तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं अपने मिशन पे जाने के लिए। तो वो एक उस टाइम ऐसा ही कुछ हुआ था, और हम जैसे ही मैं ड्यूटी पे था तो वहाँ पर एक हूटर बजता है। उसमें क्या होता है कि सभी कमांडोज रेडी हो जाते हैं, अपना बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के, अपना झोली पोज पेट्रो अम्यूनिशन हथियार लेके अपने मिशन पे जाने के लिए। ओके कमांडर जोधा, आप थोड़ा डिटेल में विस्तार में हमें समझा सकते हैं कि आपकी एंट्री सीधे ताज में हुई थी मेजर उन्नी कृष्णन के साथ? देखो, मैं एक हमारे जो टीम कमांडर थे और हमारे जो अधिकारी थे, मेजर संदीप उन्नी कृष्ण की टीम में था मैं। जब हम ताज के अंदर आए तो वहाँ हमारे एक ही टीम में 5 कमांडो जो होते हैं, तो हम जब अंदर दाखिल किया तो वहाँ अंदर देखा तो काफ़ी स्थिति ख़राब थी, और जो पाकिस्तान से आए हुए 10 आतंकवादी, जिसमें से 4 ताज में घुसे हुए थे, तो वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और अपने भोली भाली जनता को मार रहे थे। तो जब हमें पता चला कि ताज में है, हमने ताज होटल के जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं उनसे पूछा,
तो उन्होंने बोला कि आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ऊपर सीढ़ियों के द्वारा गए हुए हैं। तो हमने भी वहाँ जाके देखा तो काफ़ी खून खराबा हो रखा था और हमारे जो काफ़ी जो सिविलियन थे उनको मार रखा था। हम नीचे से ही कवरिंग फायर देते हुए और जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने का कार्य हमारा चल रहा था। जितने भी रूमों में थे डरे हुए थे और काफ़ी घबराए भी हुए थे गोलियों की आवाज़ सुनकर। और ताज होटल में आतंकवादियों ने चारों तरफ आग लगा रखी थी, क्योंकि इसमें थोड़ा एनएसजी के जब आने का थोड़ा उनको क्या था कि जो वहाँ की मीडिया जो हमारा कवरेज पूरा लाइव दिखा रही थी तो वो अंदर से देख रहे थे, तो उनको सारा सब कुछ पता चल रहा था। और पाकिस्तान से उनके फ़ोन से उनसे बात भी हो रही थी, उनको सब कुछ बता रहे थे। जैसे ही वो हमें लगा कि भाई हमारा ऑपरेशन लीक हो रहा है, तो हमारे जो जितने भी अधिकारी थे उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बात करने के बाद जो ऑपरेशन चल रहा था उसको लाइव ना दिखाने के लिए बोला, तो मीडिया ने हमारा सपोर्ट करा और जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था उसको लेट दिखाया, जिससे कि लेट दिखाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्योंकि जो आतंकवादी थे उनको हमको जो हमें देख रहे थे लाइव वो देख नहीं पा रहे थे, तो उस कारण वो जहाँ भी उनको जगह मिली छुपने का प्रयास कर रहे थे और जहाँ भी बंदे फंसे थे उनको ढूंढ ढूंढ के रूम में जहाँ उनको लग रहा था जा रहे थे और अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार गिरा रहे थे। ऐसे ही करके हम 6 मंजिल पे जब हम गए, वहाँ पर जब हम रूम सर्च कर रहे थे तो वहाँ देखा कि काफ़ी बंदे जो रूम में फंसे हुए हैं, तो उनको बाहर निकाला। बाहर निकाले के बाद और जब रूम नंबर 271 पे जब हम गए थे तो वहाँ देखा, तो उसको नोक करने के बाद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और जो हमारे साथ हवलदार राजवीर थे, तो गेट नहीं खोल रहे थे। गेट तो हमें जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमने वहाँ जाके रूम को दोबारा खोलने की कोशिश करवाई, तो उन्होंने नहीं खोला। तो हमारे संदीप उन्नीकृष्णन जो हमारी टीम के कमांडर थे उन्होंने बोला इसमें कुछ है। तो जैसे ही हम अपनी पोजीशन ले ली, पोजीशन लेने के बाद हमारी जो फर्स्ट रो में ऊपर जो कमांडोज की टीम जो सर्च कर रही थी, तो आतंकवादी ने धीरे से गेट खोल के अचानक फायर कर दिया था। फायर करने के बाद जो हमारे कमांडो फर्स्ट रो में सामने की तरफ रूम सर्च कर रहे थे, उसमें से 2-3 कमांडो हमारे घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उनको हमने नीचे भेजा हॉस्पिटल में, और उस आतंकवादी ने अपने गेट को बंद कर लिया था। बंद करने के बाद जब हमें पता चला कि इसमें कन्फर्म हो गया कि इसमें आतंकवादी है, तो हमारे जो कमांडिंग अधिकारी थे वो भी वहाँ पहुँच चुके थे। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भी साथ थे। तो संदीप ने बोला सुनील इसमें सिंगल शॉट फायर करते रहना कि आतंकवादी यहाँ से बाहर ना निकल जाए। तो मैंने सिंगल शॉट मैं और मेरा साथी फायर कर रहे थे। फायर करते करते तो हमारी जो कमांडिंग अधिकारी था, तो उन्होंने जो कमांडोज की टीम जो ट्रेनिंग के हिसाब से जो कार्रवाई की जाती है वो उन्होंने बताया, और उसको हमने गेट को चार्ज लगा के उसको उड़ाया। उड़ाने के बाद उस रूम में आग लग गई थी। आग को हमने पूरी टीम ने कमांडोज टीम ने उसको बुझाने की कोशिश की,
इतने फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे हुए थे उनके द्वारा भी, और वो आग इतनी भयानक हो गई थी। तो वहाँ पर जितने भी कमांडोज थे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब काफ़ी गर्मी थी। और उसके कारण फिर संदीप उन्नीकृष्ण ने बोला कि नीचे चलते हैं। तो हम सीढ़ियों के द्वारा नीचे आए थे। जब नीचे आने के बाद हम ऑपरेशन हमारा थोड़ी देर डिले हुआ था, तो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण के साथ ऐसे ही मैं सोफे के पास नीचे बैठे थे, सर ऊपर बैठे थे। जैसे ही मैंने उनको बोला सर मैंने कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर ही अपनी ब्लैक जो डांगरी होती है उसको पहन रखा है, तो गर्मी काफ़ी लग रही है। तो उन्होंने बोला कि इसको धीरे से शर्ट को खोल दो, शर्ट खोल के अपनी झोली में डाल दो। और जैसे ही हमने शर्ट खोल के झोली में डाली और तुरंत ही आतंकवादी ने ऊपर से ग्रेनेड बाहर शिवलिनों के ऊपर खिड़की से फेंक दिया था। तो जैसे ही हमारे कमांडिंग अधिकारी ने फिर मेजर संदीप को बोला कि अभी ये आतंकवादी अभी बच गए हैं, तो अपनी टीम को खड़ा करो और सेकंड फ्लोर पे आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई है। जैसे ही हम आगे बढ़े और मैं सबसे आगे गाइड कर रहा था, मेरे नाइट विजन मेरे हथियार पे लगा हुआ था। जैसे ही हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उसमें काफ़ी अंधेरा भी था। आतंकवादियों ने क्या पूरे चारों तरफ की लाइट काट रखी थी और पानी टपक रहा था। हमारे जूते भी गीले हो चुके थे, काफ़ी घंटे हो चुके थे। जैसे जैसे ही वहाँ पर आपने देखा होगा रतन टाटा जी का जो जमशेद जी का जो स्टैचू लगा हुआ है अंदर, वहाँ से जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद एक ब्लैक गेट लगा हुआ था। जैसे ही वहाँ हम पहुँचे, नायक बाबूलाल और मैं दोनों आगे लीड कर रहे थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही हमने गेट खोला तो खोलने की कोशिश करी तो एकदम फायर आ गया। फायर हमने भी खोला तो जो सामने का आतंकवादी था वो ढेर हो गया था और हमें पता नहीं था कि और भी आतंकवादी ऊपर भी हैं। अचानक ऊपर से फायर आ गया था, तो जो हमारे जो नायक बाबूलाल थे वो उनको सपोर्ट मिल गया कहीं और वो अपने छलांग लगा के साइड हो लिए। तो और मैं वहीं पर फंस गया था। मेरा क्या वहाँ फंसना सा, मेरे ऊपर उसने आतंकवादी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, मतलब 30-40 राउंड मेरे ऊपर निकाल दिए थे। इसमें से मुझे उस ऑपरेशन के दौरान 8 गोलियां लगी थी और एक गोली आज भी मेरे हार्ट में दिल के पास से और कुछ स्प्लेंटर फंसे हुए हैं मेरी बॉडी में। और मैं सीढ़ियों से रुलकता नीचे आया तो मैं अपने आप को देख रहा था नीचे पड़े और अपने आप को ऐसा शांत कर दिया था कि ऊपर वाले आतंकियों को पता चले कि ये ख़त्म हो चुका है कमांडोस। तो मैंने अपनी सांसों को रोका और बिना हिले डुले अपने आप को संभाला, रोके रखा। जैसे ही मेजर संदीप उन्नीकृष्ण कवरिंग फायर देके थोड़ा पास आए तो उन्होंने आवाज़ लगाई, तो मैंने बोला था कि गोली लगी है। अब ये पता नहीं कि मुझे हाथ पे लगी, क्योंकि मुझे उस टाइम हाथ पे ही दिख रहा था, गर्म खून था और कुछ भी नहीं था। तो मेरा हाथ बिल्कुल खूनम खून हो रहा था। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे जो यहाँ से लगी यहाँ निकल गई और कंधे से और जो हार्ट के पास से और अंगूठा, इनका कुछ पता नहीं था लगी भी है कि नहीं लगी। जैसे ही कवरिंग फायर दिया और मेरे को संदीप ने बोला कि मैं कवरिंग फायर देके आपको बाहर निकालवाता हूँ, तो घबराओ मत। तो सर ने जैसे ही कवरिंग फायर दिया तो अपने 2 कमांडोज आए और मेरे को उठाया और मैं खुद मतलब दोनों हाथों से पकड़ रखा था। मैं जैसे ही बाहर जाने लगे हम तो ऊपर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका 2 बार। ग्रेनेड फेंकने के बाद एक्शन इतना तेज़ था कि जो वहाँ की दीवार थी, ग्रेनेड के छर्रे हमें नहीं लग पाए थे और मेजर संदीप उन्नीकृष्ण आगे बढ़ गए थे। तो जैसे ही मेरे को मैं बाहर गया, ताज होटल के बाहर एम्बुलेंस लगी हुई थी। जब ये मेरे कंधे की गोली निकल रही थी तो जब तक मुझे होश था, जब मैंने देखा कि काफ़ी ब्लडिंग हो रही है, डॉक्टर ने जो एम्बुलेंस में जो डॉक्टर की टीम थी
तो कंधे की गोली निकलने के बाद मुझे होश था और उसके बाद मुझे होश नहीं था। और मुझे जब दूसरे दिन पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मेरा इलाज हॉस्पिटल बॉम्बे में चला था। तो जब ये मेरे हॉस्पिटल में जाने के बाद तो हमारी जो बची हुई कमांडो पूरी टीम थी, उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जो जितने भी आतंकवादी थे उनको मार गिराया। और जब मुझे बीच में डॉक्टर पराग मुंशी थे जो बॉम्बे हॉस्पिटल में जब मेरा इलाज चल रहा था, तो उसने मेरी थोड़ी सी बात कराई थी जब मुझे बाद में होश आया था कि आप घर पे मेरी मिसेस के पास ही फ़ोन करा था, तो बोला आप कमांडो सुनील जोधा से बात करो, क्योंकि इनको सबको पता चल चुका था। ये नहीं पता चला कि मुझे गोली लगी है। पर ये जो उस टाइम मेरा छोटा बेटा हुआ ही था और उसको 3-4 महीने हो गए थे। तो जैसे ही टीवी पे मेरे जो साले साहब थे उसने टीवी बंद कर दी और सारे फ़ोन अपने पास रख लिए थे। तो ऐसी उनको लगा कि ऐसी कोई खबर ना आ जाए कि इनको डायरेक्टली मेरी वाइफ और इनको सबको पता चले। जैसे ही पराग मुंशी ने फ़ोन करा था तो एक छोटा सा फ़ोन जो मैंने अपनी मिसेज को दे रखा था, वही नंबर मुझे बाद में याद था। तो मैंने कॉल करा था तो फिर वही थोड़ी सी बात हुई थी कि मुझे गोली लग चुकी है और मुझे बच्चों से बात करा दो, शायद मैं क्या पता अब लौट के आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। इतना कहने के बाद मैं फिर बेहोश हो गया था और आतंकवादियों की जो मेरी गोलियां जो 6 निकाली थी एक डिब्बे में मुझे डॉक्टर ने थोड़ी दिखाई थी। उसके बाद मेरा वहाँ इलाज चलता रहा था। आज एक मुझे जो 26/11 की आज 15 साल हो गए हैं, उसके यहाँ पर उपलक्ष्य में फडणवीस साहब की उपलक्ष्य में मुझे और मेरी वाइफ को बुलाया गया था और उसका प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा महसूस होता है और जो देश के लिए जो भी कोई भी सैनिक हो जो काम करता हो उसको सम्मान मिलता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। कमांडो जोधा, थैंक यू, आपने अपनी कहानी हमारे साथ फिर से शेयर करी। थैंक यू वेरी मच सर, सैल्यूट्स टू यू। लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस उज्जवल निकम। उज्जवल जी, thanks for joining us on this 15th anniversary. When the case started and you were made aware that you were becoming the public prosecutor, what was the first challenge in your mind? Frankly speaking, I have conducted number of trials against the hardcore terrorists, including the Bombay bomb blast case of 1993. I was in the Ortho jail for the said trial for about 12 to 13 years, and thereafter when this case, that is the terror attack of 26 November on Mumbai, was entrusted to me, I was my stay in the jail was extended for a further 1 year. So totally I was in the jail for about 14 years, in a lighter vein I can say. But frankly speaking, when the government has decided to entrust this case to me, it was a biggest challenge for me. Biggest challenge not for doing the marshalling evidence so that Kasab should be sent to gallows, but the big challenge was to expose the role of the Pakistan. Because the 10 terrorists came on the night of 26 November from Pakistan with certain mission, and certain identity cards, Indian identity cards were found with them. So it is obvious they were trying to conceal their identity, that they are origin from Pakistan. And to expose their role, not only their role, but the role of the Pakistan behind the terror attack of 26 November, I would say the role of Pakistan means the Lashkar-e-Toiba, that is Jamaat-ud-Dawa, and certain Pakistan army officials, which I had exposed
later on by examining David Headley. So, frankly speaking, this trial was not only challenged, but to conduct such a mammoth trial and to dispense with the justice within shortest possible time, that was a moot question before me, and I finished this trial within the span of 10 to 11 months in Mumbai Session Court and 10 months in the Bombay High Court, and later on in the Supreme Court about a year. Okay, Ujjwalji, to the best of your, as memory serves you, sir, the evidence that was brought forth during the course of the trial, how much do you think made its way into the dossiers that eventually went as evidence to the Pakistanis? See, after execution of Ajmal Kasab, I had been Islamabad along with the 3 high officials of the government of India. It's an official delegation. We stayed in Islamabad for about 8 days, and we had a long meetings with the Pakistani Home Ministry officials, as well as their army officials were also present. And we told them categorically, look, the conspiracy behind the terror attack of 26th November was hatched on the soil of Pakistan. And it is for the Pakistan to prosecute seriously the perpetrators of the terror attack, including Hafiz Saeed and Zakir Rahman Lakhvi. No doubt Pakistan had arrested some small fries, about 6 to 7 persons whose role was not that very major role behind the conspiracy. But Pakistan's constantly telling us that India should furnish us evidence. I was really amused that criminal conspiracy was hatched on their soil and still they were asking the evidence. And later on when we came back to India, then later on I have examined David Headley in Mumbai court through video link. I remember. This is again for the first time a foreign terrorist evidence we have taken, live evidence through video link in Mumbai court, and David Headley has given a very sensitive revelation disclosing the close connection between Lashkar-e-Toiba and Pakistan, some of the army officials. It is not the only contention of David Headley, but David Headley also had produced email correspondence which was exchanged between Lashkar-e-Toiba with the telephone directory of the Pakistan Army officer number, which was written in his own handwriting, which he had produced in the Chicago court also. And Chicago court had relied upon that evidence, and Chicago court had convicted David Headley for about 35 years. Correct. So we had presented the entire this evidence, that is David Headley's testimony, as well as Ajmal Kasab's his own confession, how Ajmal Kasab and 9 his deceased colleagues were trained in handling the sophisticated weapons and etc., how to interact with their handlers in Karachi, in the control room, and how to kill the innocent persons. Yes, and we know how that played out, right? We know the Pakistani media went to Ajmal Kasab's village and spoke to his family members who said that the LAT took them and paid us 2 lakh rupees. Then they blockaded, the Pakistani army came and blockaded the village. They refused to recognize Ajmal Kasab as a Pakistani. They refused to take back his body. But when it came to Hafiz Saeed and Lakhvi and all the trials and the sham arrests and bails and all that, what do you make of what happened there in your memory, sir? Pakistan initially was in the denying mode. Pakistan said that this is not a sufficient evidence against Hafiz Saeed and Zakir Rahman Lakhvi. We told them that you conduct this trial in open court. Why you are conducting this trial in camera? In Mumbai, we have conducted trial against Ajmal Kasab in an open court, allowing media person, whereas in the Pakistan media is banned. They are not publishing what is happening in Pakistan court. Now today also we don't know. That trial against the small fries is still pending in Pakistan court. That is being conducted. That is what they said. And Pakistan, when we have furnished the testimony of David Headley to Pakistani authorities, our present foreign minister, Mr. Jairat was at that time, he was the foreign secretary. Yes. And we have marshaled the whole evidence.
to them through the so NDA. how frustrating is it, Mr. Pakistan Nikam? has not acted Yeah, upon so that how evidence. frustrating is it when we see Hafiz Saeed in whatever end stage of health he is now in? How frustrating is it that eventually X could not be done other than furnishing proof? We were hoping the Pakistanis would take action and they never acted. He's still free. Frankly speaking, we don't have any extradition treaty with Pakistan, and we, no doubt, earlier also we mounted so much pressure upon the Pakistan to take action against Hafiz Saeed, Zakir Rahman Lakhvi, but they are not taking any action. And I think, I personally feel that we should raise this issue before again the United Nations Security Council, because earlier also Financial Action Task Force have taken some action, because the FAT has a report. They have published a report that the Pakistani authorities are still indulging in terrorist activities, and they have banned to give financial aid to the Pakistan. Again, they have lifted it. So it is for the Pakistan, because the Pakistan has to understood that by supporting terrorist people and their organization, indirectly Pakistan will also face the same. I just want to address one more from individual convict in this case, Tahawur Rana sir, who was of course in cahoots with Headley. That extradition case is still going on. What do you make of it, where it has reached? Though we have an international treaty with extradition treaty with the US authorities, and that stage is now at a very mature stage, and I am told that US court has allowed, so far as the extradition of Tahawur Rana is concerned, but he has preferred an appeal that is pending in US court. So let us wait and hope, but I am very optimistic Still, that US government will take a serious note of it. And because Tahawur Rana was the master of David Headley. yes. And Tahawur Rana has been convicted by US court also. So Tahawur Rana is a basically Pakistani person. He was serving as a doctor in Pakistan Army for 3 to 5 years. Yeah. So he had a close association with the Pakistan Army officer. But it's been 15 years. Let us see what happens Nikamji, in US court. Yeah, 15 years, here we are, 15 years later, time has passed by. I've been speaking to you, off and on for these, we've been doing these interviews off and on for past 15 years. Do we look back and really consider seriously that just sending the dossiers wasn't enough, that we should have taken a stronger position, maybe even done something, and that subsequently now when we've seen the Uri and then of course the strikes in Balakot and the surgical strike, that this is different. This is a different India responding. Indeed, India has a strong will to fight against the terrorists, and even aftermath of the terror attack of 26 November, India has done very strong counter strategy policy also. And therefore, after 26 November attack, nobody had courage and dare to attack or to do or to indulge in such type of terror activity again in India. That is the, I think, success of ours. And I wish that no one should dare to attack India in any way, otherwise that person or that country will face serious music. Well, to a duty that he performed well, because of course Kasab was convicted and paid for his crimes after having faced trial in an open court of law in India, despite all of us literally seeing the photographs of him roaming around shooting people and hearing one of his victims at the beginning of this telecast. Ujjwal Nikam, thank you for your service to our country and appreciate you speaking with us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.